کلام مقدس میں سے ہم نے چند آیات تلاوت کی اور مسٹر منور عزیز صاحب نے آپ کے سامنے پڑھا کلام کو، اور اس میں شکر گزاری کا جو آج کا خاص پیغام ہے وہ داؤد کی معرفت ہے، داؤد بادشاہ کی معرفت۔ کہ اے خداوند میں تیری تمجید کروں گا کہ تو نے مجھے سرفراز کیا اور میرے دشمنوں کو مجھ پہ خوش ہونے نہ دیا۔ اے خداوند میرے خدا، میں نے تجھ سے فریاد کی اور تو نے مجھے شفا بخشی۔ یعنی ایک ایک لفظ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی کے متعلق ہے۔ اے خداوند میری جان کو پتال سے نکال لایا ہے، تو نے مجھے زندہ رکھا کہ میں گور میں نہ جاؤں۔ اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ خداوند کی ستائش کرو، آئے اس کے مقدسوں اور اس کے قدوس کو یاد کر کے اس کی شکر گزاری کرو۔ کلام مقدس آج یہ فرماتا ہے۔ میرے عزیزوں، آج ہم سب شکر گزاری کے دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے فرق طریقے سے اپنے لب بھی کھولے، اپنے ہونٹوں کو کھولا، اور ہم نے یہ اظہار کیا کہ ہم کیوں شکر گزار ہیں، کیا وجہ ہے، حالانکہ ہم پوری طرح اس کو ایکسپریس نہیں کر پائے۔ مثلا میں اپنی شکر گزاری کی بات اگر کروں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ شکر گزار کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ جب میں اس کو پڑھ رہا تھا تو میں یہی پڑھ رہا تھا کہ تو میری جان کو پتال سے نکال لایا ہے اور تو نے مجھے زندہ رکھا ہے تاکہ میں گور میں نہ جاؤں۔ اور یہ ہم سب کے لیے ہے۔ میں اپنے آپ میں اگر یہ فیل کرتا ہوں تو ہم سب اس بات کو فیل کرتے ہیں۔ ہم بیماری کی حالت میں ہوتے ہیں، ہم کمزوری کی حالت میں ہوتے ہیں، ہم فرق تکالیف کی حالت میں ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں۔ اور یہاں پر داؤد بھی یہی کہتا ہے کہ آئے اس کے مقدسوں، خداوند کی ستائش کرو۔ آج کا ہمارا حوالہ جو ہے، آج کا ہمارا متن جو ہے وہ ایک پیشن گوئی ہے، اور یہ پیشن گوئی داؤد بادشاہ نے ان برکات کے متعلق کی ہے جو کلیسیا کے لیے دنیا میں آنے والی تھیں اور ہیں، ان کے متعلق وہ پیشن گوئی کرتا ہے۔ ہم اگر یہ کہیں کہ بلا شبہ وہ یہ جانتا تھا کہ یہ برکات کیا ہوں گی، وہ یہ جانتا ہے کہ یہ کون سی برکتیں ہیں جو ہم تک پہنچنے والی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کہتا ہے کہ ایک شکر گزار دل کے ساتھ اس نے شکر گزاری کی۔ وہ کرتا ہے شکر گزاری اس شکر گزار دل کے ساتھ۔ اور اس زبور میں اگر ہم ان تمام باتوں کا ذکر دیکھیں تو جو مستقبل میں ہونے والی تھیں، تو وہ ان کی خاطر شکر گزاری پہلے ہی کر رہا ہے۔ اس کو نہیں ہی پتا، لیکن وہ ازیوم کر رہا ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ تمام باتیں جو ہیں وہ اس زندگی میں، اس جہان میں، اس دنیا میں ہونے والی ہیں، اور وہ شکر گزاری کرنا ان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ، شکر گزاری کے ساتھ ساتھ، وہ کلیسیا کو ان خطرات سے بھی آگاہ کر رہا ہے۔ وہ خطرات کیا ہیں؟ کہ وہ برکات جو ہمیں مل رہی ہیں، وہ برکات جو ہم انجوائے کر رہے ہیں، اس کے وسیلہ سے ہماری وہ خواہشات جو ہیں وہ کیسے پوری ہوں گی۔ وہ آگے چل کے ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ وہ ان تمام باتوں کا ذکر جاری رکھتا ہے کہ کلیسیا میں کس طرح ہر فرد کو شکر گزاری پر آمادہ ہونا چاہیے۔ ابھی ہم نے ہر ایک نے اپنی اپنی
पर्सनल टेस्टिमनी शेयर की, और उसने हम ने उसमें यही हर बात में यही निकाला कि हम कैसे खुदावंद के हुजूर में आकर शुक्रगुजार दिल के साथ उसके साथ आज के दिन मिले हुए हैं, किस तरह उसकी आज के दिन इबादत कर रहे हैं, और उन तमाम बरकतों को जो हमें खुदावंद ने दी हैं, रूहानी है या दुनियावी हैं, उनका खुदा को के सामने हम इकरार कर रहे हैं। और एक और चीज बड़ी तजर्बे की मैं आपके सामने आज पेश किया चाहता हूं कि जब शुक्रगुजारी का मखसूस दिन जैसे आज है ये करीब आता है, तो एक चीज आप जरूर देखेंगे कि हम उस बात को देखते हैं कि जैसा जो शुक्रगुजारी के टाइम पे उससे पहले बरकत हमें मिलती थी, अब वो नहीं मिल रही, वो रुक चुकी हैं। तो खुदावंद क्या करता है कि खुदावंद उस दिन हम पर वो बरकतें नाजिल फरमाना शुरू कर देता है, वो हम पर अपनी बरकत को निछावर करना शुरू कर देता है, और हम इस तजर्बे को जरूर दूसरों के साथ शेयर करना हमारे लिए लाजम है। जैसे आज हमारे काफी अजीजों ने आज के दिन इस बात को शेयर किया कि मैं किस बात के लिए फिक्रमंद था, मैं किस बात के लिए शुक्रगुजार हूं, मैं क्यों आज शुक्रगुजार हूं, वो तमाम बरकतें। लेकिन आज के दिन हम देखते हैं कि उन तमाम बातों को, उन तमाम बरकत को जो हमारी जिंदगी में वाकई रुक चुकी होती हैं, जैसा हम सोचते हैं वो फिर से बहाल हो जाती हैं। हम यही सोचते हैं कि ये बरकतें रुक चुकी हैं, लेकिन हम फिर देखते हैं कि वो फिर से बहाल हो जाती हैं। वो क्यों? आगे चल के हम देखते हैं कि दाऊद बादशाह ने ऐसा क्यों सोचा। दाऊद बादशाह रूल कुद्स की कुदरत के वसीला से इस पेशन गोई पर ईमान लाया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? प्लीज इसको जरा गौर से सुनिए एक दफा फिर कि दाऊद बादशाह जो है वो रूल कुद्स की कुदरत के वसीला से इस तमाम पेशन गोई को जो उसने खुद की है, जो वो खुद बताता है, इस हवाले में आने वाली जिंदगी के मतलब वो सोचता है और उसके मतलब वो शुक्रगुजारी करता है, लेकिन यहां पर वो उस पर कायम रहते हुए उस पर ईमान लाया और उसने उसको शुक्रगुजारी के तौर पर खुदावंद के हुजूर में पेश किया। एक और बात जो मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूं कि दाऊद बादशाह वाहिद बादशाह था। गौर से सुनिएगा, वो वाहिद बादशाह था जिसने कभी भी किसी झूठे देवताओं की परस्तिश नहीं की थी, किसी झूठे बुतों की परस्तिश नहीं की थी। लिहाजा जो उसने बातें की, जो उसने पेशनगोइयां की, जो उसने मुस्तकबिल के मतलब हमारे सामने कलामे मुकद्दस को पेश किया, हमें इस बात का एतबार होना चाहिए कि ये पेशनगोई, ये कलाम जरूर पूरा होगा, क्योंकि वो खुदा का ममसू था। उसने कभी झूठे देवताओं की परस्तिश नहीं की थी। अगर हम कंप्यूटर खोलें, इंटरनेट खोलें, गूगल को पूछें, तो हम देखते हैं कि खुदावंद की तमजीद और शुक्रगुजारी करने की इब्तिदा कलीसिया ने क्यों की। हम सब इस बात को अगर नहीं पता तो आप मेहरबानी से गूगल में जाकर इसको जरूर चेक करें और यूनाइटेड स्टेट्स की उन तमाम बातों को गूगल आपके सामने ले आएगा कि कैसे वहां पर उस खानदान से, फिर उस कलीसिया में और उस कलीसिया से पूरे मुल्क में इस बात को शुक्रगुजारी के तौर पर
بیان کیا جاتا ہے۔ ایک خاندان نے یہ تہیا کیا، اس کے بعد اس نے اپنے چرچ کے لوگوں سے شیئر کیا، پوری کلیسیا جو ہے وہ شکر گزاری کے طور پر، اور کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ اس نے کلیسیا کو اس لیے سرفراز کیا۔ اور پھر ہم نے ایک آیت بھی پڑھی، اور اس آیت میں پہلی بات اس نے کیا کہی؟ اور اس نے میرے دشمنوں کو مجھ پر خوش ہونے نہ دیا۔ اب کون سے دشمن ہیں؟ کلیسیا کے دشمن کون ہیں؟ جو خدا کے دشمن ہیں، وہ کلیسیا کے دشمن ہیں۔ اور وہ کون ہے؟ جو اس دنیا کا شہزادہ ہے، جو اس دنیا کا راجا ہے، جو اس دنیا میں لوگوں کو ورغلاتا ہے، وہ کلیسیا کا دشمن بھی ہے، اور ہم سب کا دشمن بھی ہے، اور خدا کا دشمن بھی ہے۔ لیکن میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، خدا نے، یعنی کہ خدا باپ نے ایک ایسی شخصیت، خداوند یسوع المسیح کی شخصیت جو ہے اس کو دنیا میں متعارف کرایا۔ اس کو کیوں متعارف کروایا؟ کیونکہ اس نے دیکھا کہ گناہ جو ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور اس نے کہا کہ یہ اتھارٹی جائے گی، یہ میرا بیٹا اس دنیا میں آئے گا، اور وہ ان تمام گناہوں سے نجات دے گا۔ مسیح خداوند دوسرے لفظوں میں گناہ کا دشمن ہے۔ مسیح خداوند میرے عزیزو دوزخ کا دشمن ہے۔ مسیح خداوند موت کا دشمن ہے۔ اور آگے چل کر ہمیں یہ پیشن گوئی بتاتی ہے، ایک اور پیشن گوئی، کہ ایک ایسا دور آئے گا جب دنیا میں اس دشمن کو جو گناہ کا اور جو ہمارا اور جو کلیسیا کا دشمن اور خداوند کے لوگوں کا دشمن ہے، خدا کا دشمن ہے، یسوع کا دشمن ہے، اس کو اٹھا لیا جائے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ پھر کلیسیا سرفراز ہوگی، پھر خدا کے لوگ سرفراز ہوں گے۔ میرے عزیزو، اور وہ کب ہوگا؟ جب مسیح خداوند ان دشمنوں کو فتح کر لے گا، اور اس کے وسیلہ سے یسوع المسیح ہمارا خداوند، ہماری زندگی کا ہمارا خداوند، ہمارا منجی خداوند یسوع المسیح ہوگا۔ یہ تب ہوگا۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہم جانتے ہیں کہ اس عظیم کام اور قربانی کے وسیلہ سے جو برکتیں کلیسیا کو عطا ہوئی ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ غالبانہ۔ اس کا مطلب ہے گناہ کا اٹھا لیا جانا۔ اس کا مطلب ہے ذاتی عمل کی انتظار گاہ کے طور پر جہنم کا انتظار اور موت کا خوف اب یہ ہماری زندگی کا حصہ نہیں رہے۔ اس کا مطلب آپ ضرور سمجھیں کہ گناہ کا اٹھا لیا جانا، ذاتی عمل کے انتظار گاہ، اور میرے عزیزو جہنم کا انتظار اور موت کا خوف اب ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہے۔ اب حصہ کیا ہے؟ یہ تمام ایک ایسا عمل ہے، اس عمل سے ہوتے ہوئے ہم، اس راستے سے ہوتے ہوئے ہم، اس جہنم اور انتظار گاہ سے ہوتے ہوئے ہم، میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہم اس راستے سے اپنے خداوند اور اپنی زمینی زندگی میں ہی خداوند نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ یہ وہ راستہ ہے جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ہم اس میں سے ہوتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم زبور کی پہلی سطر میں سے ان برکات کے لیے شکر گزاری پر مائل کرنے کے لیے جو خداوند نے ہمیں بتایا
ان के मुतल्लिक देखें तो वो मसीह की फतह मंदी में शामिल होने या मसीह की फतह मंदी में हिस्सादार बनने के हमें काबिल बनाती हैं। और फिर आगे जाकर ज़बूर नवीस जो है वो अपने बयान को जारी रखता है और वो कहता है, वहां पर ये कहता है नंबर 2, जो मैंने जिसका जिक्र पहले ही किया था, कि तूने मेरी जान को पाताल में से निकाल लाया है, तूने मुझे जिंदा रखा कि मैं गौर में ना जाऊं, गौर मीन कब्र में ना जाऊं। ये उसकी दूसरी बात है जो इसके लिए वो शुक्रगुजारी कर रहा है। खुदा का बंदा दाऊद बादशाह इसकी शुक्रगुजारी कर रहा है और वो हमें बता रहा है कि मौत का और पाताल का जो कि जहन्नम है हमारी जिंदगियों से कोई ताल्लुक नहीं रहा। अब उसका ताल्लुक जो है वो हमारे ईमान और हमारे यकीन पर मबनी है। अब हम क्या है, अब हम खुदा हमें पाताल में नहीं जाने देगा, बल्कि वो हमें ना ही हमें इंसाफ के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। सुनिए जरा गौर से, और इस पर मैं समझता हूं इसको आज हम अपने दिलों में रखें, इस पर गौर करें, कलाम मुकद्दस को और ज्यादा डिटेल के साथ पढ़े और ज्यादा करीब होकर पढ़े। और अब हमें यह है कि हम उस पर ईमान रखते हैं, खुदा हमें पाताल में नहीं जाने देगा, बल्कि वो फैसले का इंतजार जिसका हम पाताल में इंतजार हमें करना था वो अब नहीं होगा। अब मौका यह है कि हम आगे बढ़ सकते हैं, और अब मौका यह है कि हम बच सकते हैं। अब मौका यह है कि अब मौत का हम पर कोई इख्तियार नहीं है, पाताल का भी हम पर कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि मसीह के फजल से। पाताल का इख्तियार क्यों नहीं है? क्योंकि हम मसीह के फजल के वसीला से अब आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हम अगर बढ़ना चाहें तो, अगर नहीं बढ़ना चाहते, अगर हम अपनी दुनियावी जिंदगी में मसरूफ हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, तो फिर हम नहीं बढ़ सकेंगे। लेकिन अब जैसे दाऊद बादशाह कहता है कि हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अब पाताल का और मौत का हम पर कोई असर नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है। और जिन बातों से खुदावंद ने हमें फैज़याब किया है, जिन बरकत से खुदावंद ने हमें नवाजा है, मेरे अज़ीज़ों, हम उन बरकत से मतवातर और मसलसल फैज़याब होते जा रहे हैं। आइए हम मेरे साथ कलाम मुकद्दस को खोलें और मुकाशफा की किताब, उसका 7 बाब और उसकी 9 से 12 आयत। मुकाशफा की किताब हम पर एक हकीकत वाज़ेह तौर पर जाहिर करती है, जो कि आजकल कलीसिया में पूरी हो रही है। और हम देखते हैं, गौर से सुनिएगा। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है, और बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि निजात हमारे खुदावंद की तरफ से है, जो तख्त पर बैठा है, और बर्रा की तरफ से। और सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्ग और चारों जानदारों के गिरदा गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सिजदा करके कहा, आमीन, हम्द और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत और अब्दुलवाद हमारे खुदावंद की हो।
आमीन। क्या जबरदस्त मंजर यूहन्ना आरफ ने पेश किया यहां पर। मंजर जो है वो ये है कि अब हमें पाताल में या उस गड्ढे में नहीं जाना, और ना ही हमें उन बरकत का इंतजार करना है जो हम सोचते हैं कि ये बरकतें आएंगी तो फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। अब हमें मसीह खुदावंद की कुर्बानी के वसीला से जो उसने मसीह ने हमें इस दुनिया में मुतारफ कराने के लिए दी, हम उसके वसूल कुनुंदा हैं। हमने उसको गोया वसूल कर लिया है, और हमने वहां यह सुना कि हर वक्त शुक्रगुजारी का होना कितना जरूरी है। हमने उस वसूल तो हमने कर लिया है, लेकिन डू वी गिव आवर थैंक्स टू our heavenly Father, our Jesus Christ? या खुदा को और उसके बेटे को कभी हमने शुक्रिया अदा कहा? ये मेरे अजीज बहनों और भाइयों, ये जानना हमारे लिए बहुत बरकत है कि अब हम पर जहन्नम की सजाओं का इतलाक नहीं होता। अब हमें उन पाताल की सजाओं का इतलाक हम पर नहीं होता, बल्कि हम खुदा के तख्त के आगे खड़े होते हैं। हम अब खुदावंद के तख्त के आगे खड़े हुए हैं, जहां पर हमें बर्रा रूहानी खुराक मुहैया कर रहा है। मेरे अजीज बहन और भाइयों, कैसी बरकत है कि हम मुर्दों में से जी उठने के मुंतजर हैं। कितनी बेहतरीन उम्मीद है, कितनी बेहतरीन बरकत है कि हम मुर्दों में से जी उठने के भी मुंतजर हैं। अगर हम उन आयात पर जाए तो हम ये देखते हैं कि अगर हम तख्त के आगे खड़े लोगों पर गौर करें तो इन सब के हाथों में हम पढ़ते हैं कि खजूर की डालियां हैं। उनके हाथों में खजूर की डालियां हैं। और मैं आपको एक हिस्टोरिकल बात बताता हूं कि खजूर की डालियां जो हैं, इब्तदाई कलीसिया में खजूर की डाली जो है वो क़यादत पर ईमान लाने की अलामत होती थी। खजूर की आपने देखा कि जब मसीह खुदावंद को होशाना वो पाम संडे वाले दिन बैठाया गया गधे पर और खजूर की डालियां लेके होशाना होशाना कह रहे थे, और वो क़यादत पर अमल करने की या क़यादत पर ईमान लाने की अलामत होता है कि हम खुदावंद तुझ पर ईमान लाते हैं। और फिर एक और बात जो मैं आज आपके गोश गुजार करना चाहता हूं, और वो ये है कि हम सब क़यामत पर ईमान रखते हैं, लेकिन जो खुदा के मुकर्रर करदा वक्त पर आएगी तो जरूर। और उस वक्त की इब्तदाई कब्रें जो थी, इब्तदाई कलीसिया के टाइम की इब्तदाई कब्रें, वो मेरे अजीजों उन तमाम ममालिक में जिनका मसीह खुदावंद में जो लोग मरे, जिन्होंने उस मौत को कबूल किया, उन ममालिक के कब्रिस्तानों में पाई जाती हैं। तो हम देखते हैं कि उन पर सलीब का निशान नहीं है, बिल्कुल कोई निशान सलीब का नहीं है। क्यों? इसलिए कि उसके ऊपर खजूर के पत्ते जो हैं वो उनकी कार्विंग हुई है, वो कुनिंदा कर दिए गए हैं। उन पत्तों के क्यों कुनिंदा किया गया है, क्यों कार्विंग की उनको किया गया है? इसलिए कि इस बात की अलामत है, वो इस बात की अलामत है कि जो ज़ेरे खाक हैं लोग, जो इस जमीन के अंदर हैं लोग, वो ईमान रखते थे कि खुदावंद के मुकर्रा वक्त पर वो लोग भी जी उठेंगे। मैंने पहले बताया कि खजूर की डालियां उस वक्त क्या थी?
क़यादत पर ईमान लाने की अलामत थी, और वो खजूर के पत्ते जो हैं वो कुनंदा किए जाते थे। मेरे अजीजों, कितना बड़ा फजल है ये, कितना बड़ा ईमान है ये, कि एक दिन आएगा जिस दिन हम जी उठेंगे मसीह खुदावंद के मुकर्रर वक्त पर, हम भी उसके साथ उस जगह पर होंगे। ये इब्तिदाई कलीसिया जो है उनका ईमान है। क्या हमें इसके लिए शुक्रगुजार होना नहीं चाहिए? हमें इसके लिए भी शुक्रगुजार होने की जरूरत है कि हमारा ईमान ऐसा है कि जब मसीह खुदावंद आएगा तो पहले तो वो जो मसीह में सो गए हैं वो जिंदा किए जाएंगे, और फिर हम जो जिंदा होंगे हम सब इकट्ठे मिलकर खुदा के बेटे यीशु का इस्तकबाल करेंगे। यह है फजल, यह है वो बात जिसके लिए आज हम खुदावंद के हुजूर में अपनी दिल की शुक्रगुजारियां पेश कर रहे हैं। हम इससे पहले ही सुन चुके हैं कि इज्जत और सारी शुक्रगुजारी कादर मुतलक खुदावंद की होनी चाहिए। मेरे अजीजों, क्यों? क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आज हमें खुदावंद के हुजूर में इस बात की शुक्रगुजारी करना भी जरूरी है कि उसने अपने इकलौते बेटे को मेरे लिए और आपके लिए इस दुनिया में भेज दिया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं। एक्सक्यूज करें मुझे, मैं ये देख रहा हूं कि रिकॉर्डिंग बंद करनी है।